सत्संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी, saying say with love धन निरंकार जी। आज एलए में ये सत्संग ग्रुप और यहाँ पिछले कुछ घंटों से जो भी वचन सुनने को मिले, वो वचनों का आधार ये परमात्मा, ये निराकार, जो भी नाम से चाहे बुलाएं, एक ये सत्य जो हमेशा से रहा है और अभी भी है, आगे भी रहेगा। तो कैसे ये जीवन में हमें इस परमात्मा के दर्शन करने का युगों युगों से संतों ने एक मार्ग दिखाया है, एक सत्य की पहचान करवाई है, और कैसे ये भी कहा है कि भक्तिमय जीवन जिया जा सकता है और ये जीने का समय ये ही जीवन है। तो कैसे इस परमात्मा से मन हर समय के लिए जुड़ जाता है जब पहले इसके दर्शन होते हैं, फिर इसके दर्शन के बाद इसके प्यार में मन हर समय लगता है और वहीं से ये भक्ति शुरू होती है। तो भक्ति है क्या? क्या ये सिर्फ किसी तरह उदास मन से इसलिए करनी है क्योंकि इस परमात्मा के बिना गुजारा नहीं, या इसको एक दिल से प्यार रख के दिल में इस परमात्मा से सिर्फ प्यार करते चले जाना है, क्योंकि इस परमात्मा के बिना जीवन जीवन नहीं है। एक हमारी पहचान भी इस परमात्मा से ही है। सेल्फ रियलाइजेशन थ्रू गॉड रियलाइजेशन की जो बात होती है, ये रियल आइडेंटिटी की बात है। बिकॉज द बॉडी that we have is going to go one day, and what will be is the eternal Atma. तो वो आत्मा का रूप इस परमात्मा में, if we see all the holy scriptures, they talk about the cycle of births and rebirths, but at the same time they talk about salvation. So the salvation is achievable while we are still living, and the way we can achieve this is to know our true self, which is not this body, but the soul when it unites with the oversoul, this supreme, this Lord, this truth, whichever name we want to call it by. तो ये हर समय रहने वाली सच्चाई के साथ जब हम जुड़ते हैं, तो ही वाकई ही ये जीवन हर पल एक आनंदमय, the blissful life, वो एक जीने के लिए जिए जा सकती है। तो कैसे अक्सर इंसान हमेशा कुछ ना कुछ सोच में ही रहता है। From the moment a child is born, the focus and the इच्छाएं जैसे होती हैं, एक फोकस जो एक ध्यान होता है, so the wants they never stop, and after one thing the other comes, and the fulfillment of one also makes another wish in our hearts that we want to then achieve. तो कैसे ये एक cycle one after the other, एक इच्छाएं ये तो कभी खत्म नहीं होती। तो जीवन में अगर इच्छाओं के पीछे ही भागते रहेंगे तो फिर एक स्थिरता कहाँ आएगी, क्योंकि कोई भी चीज़ उसकी एक लिमिटेड शेल्फ लाइफ है, एक लिमिटेड लाइफ स्पैन है। तो एक चीज़ जैसे जैसे न्यू भी कुछ होती है, if we buy something new, initially we'll be taking care so much of that thing that we will ensure that the thing is truly in its perfect condition, and gradually over time we realize that the value that we once had of that possession isn't as much. तो हम कैसे एक नई चीज़ एक समय जो नहीं थी और अब धीरे धीरे वो पुरानी लगती है, फिर हम भी उसका ख्याल इतना नहीं रखते जितना पहले रखते थे। तो ये मन में बात है कि वो वस्तु भी वही है, हम भी वही हैं, the thing is the same and we are the same, but then why still we keep losing its value over time? क्योंकि बात वही कि वो सामान है, वो अगर कोई रिश्ते भी हैं, वो तब तक ही अपनी वैल्यू रखते हैं जब तक हम उनको एक वैसा दर्जा दें, जब तक हम चाहें। तो एक अक्सर इसमें एस्पेक्ट ये भी आ जाता है
कि कोई उससे ज़्यादा अच्छी चीज़ दिख जाती है तो उस चीज़ की कद्र छूट जाती है. Like a story where this man once had a car which was quite a renowned car, and then he used to park it right in front of his gate so that all the friends ever who came or whoever came to his house would first see the car and then enter, and then the only conversation starter would be the car and how nice the car is. And this used to really give him a sense of elevation that I am slightly supreme than the others because I can possess this. And one day a friend enters, the car isn't parked there anymore. And as he goes to speak to his friend, the conversation isn't even about the car anymore. And then the friend wonders that all day long all he could do was talk about the car, and suddenly what's happened? And then suddenly the conversation starts, and the owner of the car then says, let's not talk about the car, I'm feeling quite low about it. And then the question arises that why are you feeling low about it? So the friend takes the guest to the neighbor's backyard where it's visible that the neighbor now has bought a more better brand, a more expensive car, a more prettier car than that. So the crust of the story here is that a lot of times that whatever we possess, we are not contented by it. It's only that we half of the time buy things just so that others can appreciate us more. We can hold that kind of supremacy over others. It's not even about us, it's about the world, them. What kind of status would I get? What kind of respect will I get? So if we actually start living is when we will be satisfied with whatever car, whatever house, whatever circumstances that we are in, because everything is blessed by God. And we wouldn't really care about what kind of financial status does our neighbor, our friends, the circle around us is. In fact, we wouldn't even limit ourselves to just certain kind of people who we want to talk with, we want to interact with. Because once we see that God is in everyone, we won't really have any kind of biases. We won't really see if we're talking to someone, is the person is of a different origin or a different race or any other kind of references that man has created to hate each other. Because all that man is meant to do is to love, because God is love and love is God. और किस तरह फिर ये प्रेम की बात जहाँ आ जाती है, वहीं एक ये ख्याल कि ये परमात्मा ने प्यार करने के लिए संसार बनाया, ये परमात्मा ने एक दूसरे से नफरत नहीं करनी सिखाई. इंसानों ने तो कारण बना लिए हैं नफरत करने के, पर ये परमात्मा तो खुद ही प्यार है और प्यार ही देने का संदेश हमें एक मिलता है महापुरुषों से. तो कैसे अपने जीवन को सुंदर बनाया जा सकता है ये प्यार को अपनाकर. तो इस जीवन में एक ये नजरिए की बात यहाँ आ जाती है. जैसे कहा भी है, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, हम जैसा जिसको देखेंगे वैसा ही वो नजर आएगा. तो कैसे it's all about the perspective. The way we want to see another being is our own mentality, our own thought process. The other person might or might not be. It's because of our own perception that we see somebody the way we see them. तो कैसे ये सृष्टि अपने नजरिए, ये अपने दिल के, ये अंदर के जो भाव हैं, ये वही है. क्योंकि जिस तरह जो देखेंगे, जैसे a lot of times in psychology when we talk about that if a blindfolded person is put, multiple blindfolded people are put in front of an elephant, so a person who touches the legs might say, I'm feeling a pillar. The person who might be touching the trunk might say it's a rope, or a tail might be a rope, a trunk might be any other thing. And depending on that, whichever part of the elephant a blindfolded person is feeling will perceive it to be something else altogether.
But as soon as the blindfolds come off, they see that, oh, we were actually touching an elephant. But it's only our limited vision, our limited thoughts, our limited perception that we see something for not what it is, but what we feel that it is. So how can we see the world in totality? How can we be serving selflessly the entire humanity, which is of a lot of people having different kind of backgrounds and the thought process? How can we still be loving everyone without even knowing, because most of the world is stranger to us? How can we still truly love them without even meeting them? It's only when we love the Creator can we love the creation. And then we realize that love was always there, is always. It's about our hearts that हमारा दिल ही इतना विशाल नहीं बन पाता कि हम दूसरों की एक कमियों को टॉलरेट ही नहीं कर पाते। वो टॉलरेंस की बात, वो एक्सेप्टेंस की बात कि प्यार तो है पर सबको एक्सेप्ट करने का एक बेसिक माध्यम ही प्यार है। फिर एक अपने आप बात टॉलरेंस की भी नहीं रहेगी, एक सहन करने की बात किसी के अलग नज़रिए को नहीं, ये बात एक खुद ब खुद आ जाएगी। It just comes so naturally. If you love somebody, you are able to accept that person regardless of their flaws. And then once this acceptance comes, there is no point of then even arises that there will be tolerance, that we have to tolerate this person. No, now we love everyone, so there's no even the question of tolerance, because love then sees no boundaries. तो कैसे अपने जीवन में ये टॉलरेंस लानी है? ये टॉलरेंस खुद ब खुद आएगी जितना ज़्यादा इस परमात्मा के विशाल इस रूप से जुड़ेंगे, इस निराकार से जुड़ेंगे। तो ऐसे ही इस निराकार से जितना जुड़ेंगे, मन भी उतना साफ होता जाएगा, इतना विशाल हो जाएगा कि फिर एक पूरी कायनात इस मन में पूजनीय दिखेगी। फिर हर एक में ये परमात्मा दिखेगा। We'll be able to see God in every being. Every particle of this universe is only God. तो कैसे फिर हमारे नज़रिए से भी और वो मन में बात उस तरह एक फैक्ट की तरह ही छप जाएगी कि हर तरफ परमात्मा है, हर एक में परमात्मा है। फिर जो फोकस होगा वो रिश्ते बिगाड़ने में नहीं, रिश्ते सुधारने में होगा। किसी के साथ अगर कोई रिश्ता बिगड़ भी गया, चाहे हम अपने घर में, फैमिली में, हाउस होल्ड के एनवायरनमेंट में भी देखते हैं, तो कैसे एक कुछ ही घर के सदस्य चाहे हैं पर वो सदस्य आपस में एक दूसरे से बात नहीं करना चाहते। एक डिफरेंस है उनके मनों में, क्योंकि कोई ना कोई बात से, और कैसे फिर वो परिवार ही बिखर जाता है। तो जब ये बात समझ आ जाती है कि हम घर के जितने भी मेंबर्स हैं, हम अगर मन में प्यार और सत्कार एक दूसरे का रखेंगे तो दूसरे की बात भी मान लेंगे, और वो प्यार ही है जो हमारी बात दूसरा मान लेगा। फिर एक ये फोर्सफुली कुछ कराने की डोमिनेशन से बात नहीं है, ये तो प्यार का ही काम है। रिश्ते अक्सर अगर गलत फहमियों से बिगड़ते हैं तो प्यार से सुलझ जाते हैं। तो ऐसा ही प्यार हर एक ने करना है, सिर्फ उनके साथ नहीं जो अपने घर के सदस्य हैं, मित्र हैं, पर पूरे संसार से, कि जितनी भी एक किसी की अलग मेंटालिटी चाहे है, हमें अपने मन से हर एक के लिए सिर्फ शुद्ध और अच्छे भाव ही रखने हैं। सभी में परमात्मा है। किसी की कमी दिखती भी है अगर, तो वही बात that when we see somebody who we think has a flaw, and what do we end up doing? We talk about that person to another person, whereas all that we should have done is talk to that person about the issue, not backbite about that person to another. तो कैसे एक चीज़ सुधारने का भी माध्यम एक दूसरे से दिल का रास्ता है, ना कि औरों को कुछ कह के औरों के दिल में भी उस इंसान के लिए जहर डालना। तो हर एक के लिए यही एक अरदास इस निराकार, इस परमात्मा से, कि
ये जो सारी रूहें हैं, ये जो सोल्स हैं हर एक में, ये एक अपने असली रूप को पहचान लें कि ये शरीर से बढ़कर है आइडेंटिटी, ये शरीर तो कुछ समय तक का ही रहेगा। तो जो असली पहचान है उसको देख लें, उसको समझ लें और वो एक मन में फिर जीवन भर के लिए रहे। और वही भक्ति है हर समय की, क्योंकि भक्ति के लिए कोई अलग से समय निर्धारित फिर नहीं करना पड़ेगा। The practical spirituality that we talk about is not that spirituality is only limited to few hours, few moments, few minutes in a day, but practical spirituality is living every moment as we are in devotion towards God. Then it doesn't matter if we are just confined to our house doing our duties, be it our workplace, be it us being students and going to school. Wherever we are, we only then have that essence of God within us, and then whatever we do becomes devotion, because whatever we feel is God within us, around us. So I wouldn't be taking much of your time anymore because the time's already up. And आगे के अपने मन के भाव जैसे दासी आगे और भी टूर्स पे है, तो आप सबके कोई ना कोई अक्सर एक स्टेशन से दूसरे महापुरुष पहुंच भी जाते हैं। तो आप में से आगे जो भी आएंगे और जो नहीं भी किसी कारण आज या आगे नहीं टूर पे आ पाए, दातार कृपा करे हर एक के ऊपर कि हर कोई सेवा सिमरन सत्संग से जुड़कर इस निराकार से जुड़ के अपनी भक्ति में जीवन को जीता चला जाए। आज भी सत्संग में हर एक ने वही बात जो संतों ने दोहराई, और हर बार सत्संग में जो एसेंस हम लेते हैं वो यही कि बस जीवन में अगर निराकार को ही सेंटर ऑफ आवर यूनिवर्स बना के रखे हम, कि अपने जीवन में बस फोकस सिर्फ निराकार पे, तो वाकई ही ये जीवन जीने लायक हो जाता है। फिर ये जो सत्संग सेवा सुमिरन की भी बात आती है, तो वो एक अगर हम उदाहरण से देखें कि अभी सर्दियां हैं, विंटर्स हैं, तो स्किन हमेशा फटती है, एक रफ हो जाती है, तो क्रीम, ऑयल, लिप बाम इत्यादि हम इस्तेमाल करते हैं कि वो रिपेयर मोड में एक ठीक हो जाए। तो अक्सर हम सत्संग को, सुमिरन को, सेवा को भी ऐसा ही समझ लेते हैं कि जिस तरह स्किन जब खराब हुई तो उसको ठीक कर लिया गया, कि जब हमें कोई दुविधा होगी हम निराकार को याद करके अरदास कर लेंगे, जब हमें कोई घर में तनाव लगेगा, घर का माहौल ठीक नहीं लगेगा, तो मन बहलाने के लिए सत्संग चले जाएंगे, कुछ घंटे अच्छा महसूस करेंगे। कहीं एक मन में अगर अपनी कोई गलती का एहसास होगा तो फिर संसार के लिए सेवा भाव ले आएंगे कि शायद वो गलती का सुधार ये सेवा कर दे। तो अक्सर इतना सोच के, कितना चालाकी से एक कैलकुलेशन लेकर जब किसी भाव को हम करते हैं तो वो एक प्योर भाव नहीं रहता, वो शुद्ध नहीं रह पाता, क्योंकि उसमें कुछ हमें अपने आप कुछ हासिल करने की वो इच्छा साथ लग गई। एक कोई भाव मन का वो प्योरिटी का नहीं रहा, वो फिर भाव ऐसा हो गया कि ये निराकार तो फिर है ही, पर हम तब याद करेंगे जब हमें ज़रूरत महसूस होगी। तो ये निराकार को तो फर्क नहीं पड़ेगा कि हमने निराकार को मन में बसाया कि नहीं बसाया। वो एक बात तो हमारे लिए है, हमारी बेहतरी के लिए है कि कैसे हम जितना ज़्यादा इस निराकार को बसाएंगे मन में, उतना ही वो जीवन हमारा हर पल के लिए एक बहुत ही सुकून का जीवन बन जाएगा, आनंद का जीवन बन जाएगा, भक्तिमय जीवन बन जाएगा। तो अगर हमें ही वो इच्छा नहीं है कि हम ऐसा जीवन जिएं, तो फिर वही बात कि अपनी सहूलत से जब कन्वीनियंस हो, जब ठीक लगे, तब एक अपनी बेहतरी के लिए ये सोच कर कि बहुत दिन हो गए सिमरन किए हुए, चलो आज कर लेते हैं,
और फिर या फिर कभी लगे कि कंसंट्रेशन नहीं बैठ रही, चलो सिमरन कर लेंगे, ध्यान हमारा फोकस बेटर होगा। तो जब हम उसको एक ज़रूरत के अनुसार, एक अपने लालच के किसी ना किसी वजह से जोड़ लेंगे, तो फिर वो निस्वार्थ तो रहेगा नहीं, उसमें बहुत स्वार्थ आ जाएगा, एक बहुत ही फिर वो नीड बेस्ड चीज़ नहीं। ये तो प्योर डिवाइन लव निराकार की तरफ जो है, एक जो दिल से इस का वास होकर इससे प्यार करना। तो अगर जीवन में वाकई ही ये निराकार हर समय हम बसा लेंगे, तो फिर ये छोटे मोटे लालचों से भी हम ऊपर उठ जाएंगे। फिर जीवन मीठा ही लगेगा। जैसे बोलते हैं तेरा भाना मीठा लागे, तो चाहे वो फैक्चुअली ठीक हो ना हो, एक फैक्चुअली वो मीठा हो ना हो, पर मन की अवस्था ऐसी हो गई कि वो मीठा ही लगेगा। तो बात वही कि हमने हर पल कैसे जीना है, क्या हर बारी की तरह संतों के वचनों को अनसुना कर देना है? हर बारी जितना भी चेतन किया जाए कि श्वासें तो जा रही हैं, इस निराकार को हर श्वास में बसा लो, इसके एक ध्यान में मगन हर समय रहो, भक्ति करो। क्या ये मैसेजेस हमें कान में इतनी बार पड़ गए हैं कि वो रेपिटेशन लग लग के उसका वैल्यू ही हमने ख़त्म कर दिया है? वो तो फिर लगता है कि हाँ, आके हर बार संगत में यही सुन के जाते हैं, तो कुछ नया तो सुना ही नहीं। पर बात वही कि चाहे कितनी बार भी सुन लिया, क्या जीवन में लागू किया कि नहीं? बात वही है, हर एक की भक्ति अपनी इस निराकार से एक यूनिक, एक अलग ही अपना रिश्ता है। उसको फिर भेड़ चाल की तरह हर एक जो कर रहा है वैसे ही करते गवा देना है जीवन, या वाकई ही अपना एक रिश्ता कायम करना है निराकार से? ये एहसास में निराकार के रहने की बात तो तब आएगी जब वाकई ही पहले निराकार को जानकर इसके प्रति मन में पूरा विश्वास होगा, मन में बस जाए निरंकार, तो ही फिर ये एहसास कायम रहेगा, ये ब्लिस की अवस्था, आनंद की, सुकून में एक अपने जीवन को ये जब हम मन में विश्वास बिठा लेंगे, प्यार बिठा लेंगे, तो ही होगा। तो हर एक का वो चुनाव है कि सिर्फ आकर कुछ घंटे सत्संग सुन के अनसुना करके फिर अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उसी तरह रहना है, या वाकई ही एक हम चेतनता को अपनाएं, एक अपने समय का सदुपयोग करें, हर पल में इस निरंकार को बसा के हर पल अपना और निखार लें। तो जैसा हर एक को लगे कि अगर वाकई ही निस्वार्थ होकर भक्ति करनी है, तो संतों की बातों को अपनाएं, ब्रह्म ज्ञान को मन में बसाएं, वरना व्यर्थ जीवन करना ही है, तो फिर वो चुनाव भी अपने हाथ में है। तो यही कामना कि दातार हर एक को एक अच्छी सोच बख्शे, सद्बुद्धि बख्शे, ताकि फिर वो चुनाव भी बहुत आसान हो जाता है जब उस पल में, चुनाव के पल में भी स्वाभाविक रूप में नेचुरली ये निराकार होगा, तो फिर ध्यान एक सही रास्ते पे ही लगा रहेगा। दातार हर एक पे कृपा करे। सत संगत जी, धन निरंकार जी। विवेक से काम लो। आशा करता हूँ सत्संगत जी निरंकारी की कृपा से आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। सत्संगत जी, आप जी के चरणों में बहुत ही सुंदर प्रेरणादायक कहानी विचार, जिसका विषय है विवेक से काम लो। तो आइए सत्संगत जी जानते हैं इस निरंकारी आध्यात्मिक कहानी के माध्यम से। सत्संगत जी, हम सभी जीवन के निर्णयों के उस मोड़ पर खड़े हैं सत्संगत जी, जहां कभी गुस्से में, कभी मोह में, कभी डर के कारण और कभी अहंकार में, ऐसे क्षणों में हमारी बुद्धि धुंधली हो जाती है और हम गलत राह चुन लेते हैं सत्संगत जी। लेकिन वही व्यक्ति आगे बढ़ता है जो विवेक से काम लेता है। निरंकारी मिशन सिखाता है सत्संगत जी कि ब्रह्म ज्ञान से जुड़ा हुआ मनुष्य ही सच्चा विवेक
विवेकी बनता है, क्योंकि उसका अर्थ अब स्वार्थ से नहीं सत्य से चलता है। आइए साथ संगत जी, आज एक ऐसी कहानी के माध्यम से हम आपको समझाते हैं कि कैसे एक व्यक्ति के जीवन में विवेक की लौ जलती है और उसका अंधकार में जीवन ज्ञान की रोशनी से प्रकाशित हो उठता है। साथ संगत जी, विवेक एक ईमानदार लेकिन भावुक युवक था। बाबा चैतन्य दास जी एक ज्ञानी संत है। रमेश विराज का मित्र है। रीमा विराज की बहन है। गांव वाले जो समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं। साथ संगत जी, विराज एक सच्चा, ईमानदार और मेहनती नौजवान है और उसमें एक द्वेष था कि वह अत्यधिक भावुक था और बिना सोचे समझे निर्णय ले लेता था। गांव में उसे लोग बहुत मनाते थे, लेकिन उसकी यह आदत उसे कई बार परेशानी में डाल देती थी। सत्संगत जी, एक दिन गांव में अफवाह उड़ गई कि विराज की बहन रीमा का किसी से संबंध है। विराज को जब यह बात पता चली तो उसने बिना कुछ जांचे परखे अपनी बहन पर विश्वास करने के बजाय गुस्से में आकर उसे घर से निकाल दिया। गांव वालों की बात का असर उसके विवेक पर भारी पड़ गया। सत्संगत जी, उसी समय गांव में निरंकारी सत्संग हुआ। वहां बाबा चैतन्य दास जी आए और उन्होंने अपने वचनों में कहा कि मनुष्य जब विवेक को छोड़ देता है तो वह भावनाओं का गुलाम बन जाता है। ब्रह्म ज्ञान ही विवेक का दीपक है। सत्संगत जी, विराज यह सुनकर जैसे रुक सा गया। वह सत्संग में गया, चुपचाप बैठा और बाबा जी से मिलने के लिए गया। विराज ने कहा, बाबा जी, मेरे जीवन में अंधकार छा गया है। लोगों की बातों में आकर मैंने बहन पर विश्वास नहीं किया और उसे घर से निकाल दिया। बाबा जी ने मुस्कुराकर कहा, सत्संगत जी की बेटा, सच्चा प्रेम वहां होता है। सच्चा प्रेम वहां होता है जहां विवेक होता है। विवेक वहीं होता है जो ब्रह्म को जानकर जन्मता है। निरंकार को जानो, फिर देखो मन की स्थिरता कैसे जागती है। साथ संगत जी, बाबा जी ने उसे ब्रह्म ज्ञान की दृष्टि दी और बताया कि कैसे आत्मा अजर अमर है और यह संसार एक नाटक है। साथ संगत जी, रीमा की सच्चाई सामने आई। वो निर्दोष थी। विराज फूट फूट कर रोया। वह अब भावुकता नहीं, विवेक से काम लेने लगा। वह हर निर्णय से पहले निरंकार का स्मरण करता, सत्संग करता और फिर कोई कदम उठाता। गांव के लोगों ने भी उसकी बदली हुई सोच को देखा और आश्चर्य में पड़ गए। एक दिन गांव में दो गुटों में झगड़ा हो गया। सत्संगत जी, विराज को पंचायत में फैसला लेना था। पुराने समय में वह गुस्से में आकर एक पक्ष का समर्थन कर देता है, लेकिन अब उसने दोनों की बात सुनी, दोनों को क्षमा करने की सलाह दी और सभी को एक सूत्र में बांध दिया। सत्संगत जी, गांव में शांति फैल गई। लोग कहने लगे, अब तो विराज सचमुच संत बन गया है। सत्संगत जी, बाबा जी ने अंतिम प्रवचन में कहा, जहां विवेक है वहां ईश्वर है, जहां ब्रह्म ज्ञान है वहां मोह नहीं रहता और जहां ये दोनों मिल जाए वहां जीवन सफल हो जाता है। सत्संगत जी, विराज ने पूरे गांव में सत्संग की परंपरा शुरू कराई और कहा कि अब हम कोई भी फैसला भावनाओं में बहकर नहीं लेंगे, बल्कि विवेक से निरंकार को साक्षी मानकर लेंगे। सत्संगत जी, विवेक वह दीपक है जो जीवन के अंधकार को मिटाता है। भावनाओं से परे जाकर ब्रह्म ज्ञान के प्रकाश में लिया गया निर्णय दिव्यता से भर जाता है। सत्संगत जी, सत्संग सेवा और सुमिरन से ही विवेक का जागरण होता है। सत्संगत जी, पुराने समय की बात है। धर्मपुर नामक एक राज्य था, जहां के राजा महानंद अपनी न्यायप्रियता और धार्मिकता के लिए प्रसिद्ध थे।
एक दिन उन्होंने एक अनोखी घोषणा की कि जो व्यक्ति मेरी अगली परीक्षा में सफल होगा उसे मेरा राजगुरु नियुक्त किया जाएगा। पर परीक्षा केवल ज्ञान की नहीं, विवेक की होगी। उस समाचार से पूरा राज्य उत्साहित था। ज्ञानी पंडित, सन्यासी, युवा सभी इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए आ गए। हर कोई अपने अपने धार्मिक ग्रंथों, उपदेशों और प्रवचनों के साथ तैयार था। सत्संग जी, राजा ने 3 अलग अलग परीक्षाओं की घोषणा की, पर इसमें कोई प्रश्नोत्तरी नहीं थी। ये परीक्षाएं परिस्थिति पर आधारित थी, जहां प्रतिभागी को विवेक से निर्णय लेना था। राजमहल में जानबूझकर एक नौकर को चोरी करते हुए पकड़ा गया। उसे राज्यसभा में लाया गया और पूछा गया, क्या इसकी सजा मृत्यु होनी चाहिए? प्रतिभागियों में से एक विद्वान बोला, चोरी का मतलब अधर्म, अधर्म का अर्थ विनाश और मृत्यु दंड मिलना चाहिए। संगत जी, दूसरा बोला, हम क्षमा का धर्म निभाए, इसे क्षमा करें। पर एक युवा साधारण कपड़ों में आया और बोला, राजन, इसे सजा अवश्य मिले पर मृत्यु नहीं, बल्कि इसकी सेवा भावना को परखा जाए। चोरी के पीछे कारण जाने। यदि भूख है तो रोटी दे, यदि लोभ है तो शिक्षा दे, तभी धर्म की रक्षा होगी। राजा ने सिर हिलाया और कहा, यह उत्तर विवेकपूर्ण है। एक महिला सत्संग जी आई और बोली, यह बच्चा मेरा है। दूसरी महिला भी आई, वो भी दावा करने लगी कि यह बच्चा मेरा है। राजा ने प्रतियोगिताओं से पूछा, इसमें से असली माता पिता कौन है? बहुतों ने धार्मिक श्लोक बताए, न्याय के सूत्र बताए, पर वही युवा बोला, राजन, बच्चा इनके बीच रखे और कहे कि आधा आधा बांट दो। जो सच्ची माता होगी वह कभी नहीं मानेगी। ऐसे ही हुआ। एक महिला फूट फूट कर रोने लगी और बोली, राजा जी, इसे दूसरी को दे दो, पर बच्चा जिंदा रहे। राजा ने मुस्कुराकर, सच्चा न्याय वही है, सच्चा न्याय वही है जो विवेक से निकले। सत्संगत जी, किसका दान सबसे श्रेष्ठ है? एक धनी सेठ ने सोने का पहाड़ दान दिया। एक पंडित ने अपने सारे ग्रंथ दान कर दिए, पर वही युवा एक थाली में रोटियां लेकर आया और एक भूखे साधु को भी खिला दी। सत्संग जी, राजा ने पूछा, तुमने यह क्या किया? सत्संग जी, वह बोला, राजन, दान वो नहीं जो नाम के लिए हो, दान वही है जो वक्त पर बिना दिखावे के केवल प्रेम और कर्तव्य के कारण किया जाए। सत्संग जी, तीनों परीक्षाओं के बाद राजा ने पूरे दरबार के सामने उस युवक का हाथ पकड़कर कहा कि इसका नाम दिवाकरण है। यह गरीब है पर सबसे अमीर भी है, क्योंकि इसके पास है विवेक। इसे मैंने सिर्फ सतगुरु राजगुरु नियुक्त करता हूँ, बल्कि इसे अपनी बेटी का पति भी बनाना चाहता हूँ। दरबार में तालियां बज उठी। दरबार तालियों से गूंज उठा। पंडित, ज्ञानी, साधु सभी चकित थे कि धर्म सिर्फ श्लोकों से नहीं बल्कि विवेक से किया जाता है। सत्संग जी, राजगुरु बनने के बाद दिवाकरण ने पूरे राज्य में एक परंपरा शुरू की, और वह परंपरा थी विवेक की यात्रा।
हर गांव में सत्संग होता, ब्रह्म ज्ञान बांटा जाता। हर गांव में सत्संग होता, ब्रह्म ज्ञान बांटा जाता और लोगों को सिखाया जाता कि गुस्से में नहीं, विवेक से बोलो। अंधश्रद्धा में नहीं, अनुभव से भरो। भीड़ की दिशा में नहीं, आत्मा की दिशा में चलो। और सबसे पहले निरंकार को जान लो। सत्संगत जी, बरसों बाद जब टीकाकरण वर्ध हुआ, उसके पास एक युवक आया और बोला, गुरुदेव। सत्संगत जी, दिवाकर मुस्कुराए और बोले, विवेक केवल पुस्तकों से नहीं आता, वह आता है जब मन परमात्मा से जुड़ा हो, जब अहंकार का पर्दा हटे, जब सच्ची सत्संगत जी, विवेक वह शक्ति है जो धर्म और अधर्म के बीच ही रेखा स्पष्ट करती है। ब्रह्म ज्ञान से ही विवेक जागता है। सत्संगत जी, सेवा सुमरन सत्संग से मन स्थिर होता है। और सत्संगत जी, एक बड़ा शहर था जिसका नाम स्वर्णपुर था। वहां का सबसे अमीर आदमी था सुरेश चंद्र। उनकी 4 फैक्ट्रियां, 5 बंगले, दर्जनों गाड़ियां। सत्संगत जी, वहां का सबसे अमीर आदमी सुरेश चंद्र था। सत्संगत जी, और वह सबसे अमीर आदमी था सुरेश चंद्र। सत्संगत जी, एक दिन अचानक उसकी सबसे बड़ी फैक्ट्री में आग लग गई। फिर दूसरे दिन बैंक में उसकी प्रॉपर्टी सत्संगत जी, दूसरे दिन बैंक ने उसकी प्रॉपर्टी जब्त कर ली। तीसरे दिन उसके पार्टनर ने विश्वासघात कर दिया और चौथे दिन डॉक्टर ने कह दिया कि अब आपको यह हृदय नहीं। सत्संगत जी, चंद दिनों में उसका साम्राज्य बहुत ढह गया। बंगालों से एक छोटे किराए के मकान में आना पड़ा। अब वह दिन भर उदास रहने लगा। भूख नहीं, नींद नहीं, समर्पण। सत्संगत जी, उसका बेटा विवेक हर दिन उसके पास आता और कहता, एक ही बात कहता, पिताजी आइए सत्संग चले। वहां ऐसी दौलत मिलेगी जो कभी खत्म नहीं होगी। सत्संगत जी थके हारे मुंशी सुरेश चंद्र ने एक दिन कहा, चलो आज तुम्हारे सत्संगत जी, मगर मुझे कोई चमत्कार चाहिए। विवेक मुस्कुराया और बोला, पिताजी वहां चमत्कार नहीं, सच्चाई मिलती है। वे दोनों एक साधारण से सत्संग भवन में पहुंचे। सत्संगत जी, नया सिंहासन, सत्संगत जी, जिसने बाहर के दरबार बनवाए वो सब मिट्टी के में मिल जाएंगे। असली दरबार तो अंतर में है, जहां निरंकार राज चलाता है। वहां न झूठ है, न छल है, न कपट है। वहां बस प्रेम है और शांति है और पूर्णता है। सत्संगत जी, सुरेश की आंखें भर आई। पहली बार किसी ने उसके भीतर की भूख को पहचाना। उसे गुरु के पास ले जाया गया
गुरु ने पूछा, क्या जानना चाहते हो? सुरेश बोला, मैं जानना चाहता हूँ कि मेरी शांति कहाँ खो गई है। साथ संगत जी गुरु मुस्कुराए, बोले, जिस दिन तूने खुद को दौलत में रखा उस दिन शांति तुझे छोड़कर चली गई। अब निरंकार को जान, अब निरंकार को जानो, शांति तुम्हें फिर गले लगाएगी। साथ संगत जी गुरु ने उसे ब्रह्म ज्ञान दिया। अचानक जैसे अंधेरा हट गया हो। पहली बार सुरेश चंद्र को अनुभव हुआ कि जीवन की सच्चाई धन में नहीं, दर्शन में। साथ संगत जी अब सुरेश चंद का जीवन बदल गया। पहले तो केवल लेन देन के हिसाब उठते थे, उस समय से उठने लगे जब जुबान कभी अहंकार से बोलती थी, अब विनम्रता का प्रतीक बन गई है। जो आंखें बस सोना देखती थी, अब वो निरंकार के रूप में हर चेहरा देखने लगी है। सत्संगत जी, उसने एक छोटी सी झोपड़ी में निरंकारी पुस्तकालय शुरू किया। वहां बच्चे सत्संग सुनते, बुजुर्ग सुमिरन करते और हर रविवार को सेवा का आयोजन होता था। लोग पूछते, तुम तो करोड़ों के मालिक थे। सत्संगत जी, अब इस झोपड़ी में खुश कैसे हो गया? मुस्कुराया और कहा, सत्संगत जी, एक दिन उसकी तबीयत फिर बिगड़ी। अब वह बिस्तर पर था, बेटा पास में ही था। वह बोला, विवेक, तूने मुझे सच्चा रास्ता दिखाया, अगर तू न होता तो मैं कभी। सत्संगत जी, अब वह बोला, विवेक, तूने मुझे सच्चा रास्ता दिखाया, अगर तू न होता तो मैं कभी जान नहीं पाता कि असली दौलत क्या है। सत्संगत जी, विवेक की आंखों में आंसू थे। सुरेश चंद्र ने अंतिम सांसों में कहा, धन, पद, प्रतिष्ठा सब कुछ खो सकते हैं, लेकिन जिसने परमात्मा को बनाया वह तो। सत्संगत जी, कहानी से हमें सीख मिलती है कि बाहर की दुनिया धोखेबाज है। सत्संगत जी, भीतर का असली दरबार वही है जहां आत्मा परमात्मा से जुड़ी हो। भौतिक सुख क्षणिक है, लेकिन ब्रह्म ज्ञान की शांति नहीं है। सत्संगत जी, गुरुपाल फोर्ट। सत्संगत जी, सत्संग और सेवा ही जीवन को सार्थक बनाते हैं। सत्संगत जी, दास के द्वारा कहे गए प्रेरणादायक कहानी विचार। यदि आप जी को अच्छे लगे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में धन निरंकार जी जरूर लिखें। तो दास को आशीर्वाद दे। आप जी के चरणों में ऐसी ही सुंदर सुंदर प्रेरणादायक कहानी विचार लेकर आता रहूं। सत्संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।